अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम आप कैसी हैं? मैम आप कैसी हैं? I'm also perfectly fine, alhamdulillah. Let me admit rest of the students. और आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन चल रही है फॉर द फाइनल एग्जाम्स? मैम अच्छी चल रही है, लेकिन मैम कह रहे हैं वाइवा के साथ क्लासेस भी होनी है, तो मैम उस बात से बड़ा डर लग रहा है। एग्जैक्टली वाइवा के साथ आपकी क्लासेस भी होंगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रोसीजर है जो कि आप लोगों ने फॉलो करना ही करना है। जो जिस दिन आपका वाइवा है उसके लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है आप लोगों ने, बाकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। और जो आपकी क्लासेस में पढ़ा जा रहा है वो साथ साथ आप लोगों ने पढ़ते रहना है, ठीक है? क्योंकि जब आप लोगों का ये सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सिस्टम में आप लोगों को ये टाइम नहीं होता कि बस आखिरी दिन जो है वो किताबें खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। वो बहुत ज्यादा एक टफ सिचुएशन हो जाती है और बड़ा लोड हो जाता है और स्ट्रेस हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि जैसे जैसे साथ साथ टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसी दिन जब छुट्टी हो जाए तो एक अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस खोलो, या जो कुछ उस दिन आप लोगों ने पढ़ा होता है उसको एक दफा रिवाइज करो, उसको अच्छी तरह से समझो, ताकि वो जब आप जिस दिन पेपर है तो उस दिन आप सिर्फ रिवीजन करें, बजाय कि आप फिर अपने ऊपर इतना लोड डालें। वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ। किरण, वेयर इज योर रोल नंबर? मैम अभी लिखती हूँ, सॉरी मैम। जल्दी लिखो। अच्छा जी, so in the previous class we have discussed many things regarding future tense, as well as we have we discussed regarding the forms of the tenses, as well as how we can use present tense in order to talk about the future, and we did different activities for that. So moving further, I hope all of you have clearly get the idea regarding the tenses, whether it's past, present, or future. Is it so? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. They are very simple. And क्या मैंने ट्रांसलेशन कराई है आप लोगों से? No ma'am. No, ma'am. Don't need any translation. English language, why we are learning these tenses, so that a student will be able to write, a student will be able to speak. This is the reason. That's why we have discussed the tenses, and while discussing the tenses, we discussed it according to the condition instead of translating. Translation method से आप लोगों को कभी English use करनी नहीं आती है, because translation is nothing. आप लोगों को एक translation है, बच्चे रट्टे मार लेंगे. There is need to understand the conditions where you are going to use those tenses, where they are required. ठीक है? So moving further, today we are going to start with the conditional sentences, and these conditional sentences are very interesting. Why they are interesting? Because there are different forms and different ways to use these conditional sentences. So before moving towards specifically towards these conditional sentences, I really want to discuss few important points before starting these conditional sentences. मैम आपकी बात बड़ी स्लो आ रही है। बात बहुत स्लो आ रही है। मैम आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा 2 मिनट रुको, आप बताओ। मैम आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। यस मैम स्लो आ रही है। स्लो किस तरीके से? बहुत स्लो चल रही है या आवाज बेटर है? मैम आवाज कम आ रही है। मैम अब आ रही है, अब आ रही है। वॉल्यूम कम है मैम। मैं अपना वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर लेती हूँ। Before discussing these conditional sentences, we are going to discuss few important points regarding these regarding these conditional sentences. उससे related ही हैं. So I hope I want to ask the question: what is meant by modal auxiliary verb? What is meant by this modal auxiliary verb? Who's going to tell me?
Aisha Iman. Yes, ma'am. Please repeat the question. What is meant by auxiliary verbs, or I can say modal verbs? Okay, what is meant by modal verbs? These are used to ask the question. These are used to ask a question. Are you sure, Noman Iqbal? मैम would, should, can, could, may, might, ये सारे मैम मॉडल वर्ब्स हैं जो मतलब पॉसिबिलिटी शो करते हैं. Exactly. That It can also be used to precise something, to give order, request, etc. Yeah, these are some of the functions for the modal verbs. So these would, should, and could. These are few verbs that we are going to discuss them in detail. Then we will move towards these conditional sentences: could, would, and should. Where we should use them. So first of all, we should start with could. Okay, could. Is there anyone who will tell me what is meant by this could? Why we should use this could in our sentences? Is there anyone who will tell me regarding this one? I really want to check your background knowledge. No one? It can be. Ma'am, it can be our expectation. मैम possibility को show करता है, maybe or maybe not. Okay. It can be used instead of can to show a little bit doubt. Past ability. मैम expectation को ही show करता है. Okay, expectation. मैम जब past में बात करते हैं तब. जी मैम ये बात. Okay. Could is something. Could जो है that is directly the past tense of can. ठीक है? Can हम use करते हैं ना जब हम normally present की बात कर रहे होते हैं. You can do it. This is in the present tense. ठीक है? Like you can do it. You can go. This is in the present tense. Can is something that shows the ability. ठीक है? That shows the possibility. ठीक है? But when we are going to talk about this could is directly the past form of can. ठीक है? So I want to give you two examples, and we will discuss them in order to understand this could. Right? Listen to me carefully. This example. I can write 1 page in 1 minute. I can write 1 page in 1 minute. What is basic description regarding this sentence? What is the general understanding? What you get from it? मैंने willingness. ये ability है क्या? मैम ability है. भूल जाते हो. पॉसिबिलिटी है मैम. मैम ability. Ability about what? Is this the present tense or the past tense? Present tense. Present. Yeah, exactly. This is a present tense. I can write 1 page in 1 minute. Present. This is something. Exactly. This is something in the present tense. Now, when you are going to convert it into a past, as could is the past form of can, like last year, I could write 1 page in 1 minute. Can is something, can जो possibility को show करता है, ठीक है? और जब हम could में convert करेंगे, और this also means that कि हम इसको possibility भी कर रहे हैं, ठीक है? Discuss. Last year I could write 1 page in 1 minute. Javeria Yamin. Javeria Yamin. Can you hear me? Anji. Yes, ma'am. Last year I could write 1 page in 1 minute. Do you want to explain this one? ये past tense है. और जो Ashraf? Is Ashraf? यस मैम. मैम इसमें ये पास्ट टेंस है और ये लास्ट ईयर की एबिलिटी को शो कर रहा है. अभी मैं लास्ट ईयर 1 पेज लिख सकती थी और इस साल उसकी स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. अच्छा 2 मिनट रुको जरा.
Okay, so this is telling us about the possibility regarding the past. Like last year, I could write one page in a minute. So in this way, मैम आवाज मैम नहीं आ आपकी रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ मैम आवाज नहीं आ रही। can आवाज नहीं आ रही। आप बताओ। जी मैम आ रही। मैम आ रही है। So we have discussed about can and could. Is it clear to you what where we should use could? The very first point. Yes, ma'am. Is it clear? यस मैम। यस मैम। यस मैम। रिपीट कर दे। मैम मैम दोबारा रिपीट कर दे। कैन आप यूज करते हैं जब आप प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आई कैन राइट वन पेज इन 1 minute, आई कैन डू दिस, आई कैन गो, लाइक ठीक है। सो इन दिस वे, लाइक कैन यू टेल मी, दिस इज समथिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। सो कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की, ठीक है। लाइक हमने देखा था ना, इज एम आर होता है, लेकिन जब पास्ट टेंस यूज कर रहे होते हैं तो फिर हम वॉज एंड वर पे चले जाते हैं। लाइक हैज एंड हैव होता है प्रेजेंट में, तो हम उसको पास्ट में हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इन दिस वे कैन जो होता है, नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही, आ रही है मैम। आ रही है। ठीक है। तो आपका जो कुड होता है, आपका जो कुड वो पास्ट टेंस होता है, टेंस, ठीक है। Past tense में आप यूज करते हैं could instead of can, where can is required and you are talking about the past, so then you will convert that can into could. Is it clear? यस मैम। यस मैम। This is the first point regarding this could, ठीक है। Now the second point, where we should use could, or how we can use it. We can also use could in order to talk about future possibilities. In order to talk about future possibilities, could you please tell me, what is meant by this future possibility? What is meant by this future possibility? मैम रिपीट करें। I'm asking, like, what is meant by this future possibility? मैम जो एक्शन फ्यूचर में कोई करना हो। नहीं भी हो सकता। यस मैम, हो भी Exactly. सकता और नहीं भी हो सकता। Exactly, which is not guaranteed, ठीक है। So we can use could in order to talk about the future possibility. Future tense is simply जो कि एक unreal situation होती है, ठीक है, जो कि अभी हुआ हुआ नहीं होता, ठीक है, कल का तो किसी को नहीं पता होता। So future possibility is something जिसमें probability है भी और improbability भी है, possibility है भी, impossibility भी है, certainty है भी, uncertainty भी है, surety है भी और unsurety भी है। So in this way आपकी एक future possibility होती है, like it could rain tonight, it could rain tonight. This is something about the future possibility, ठीक है। जब आप एक possibility की situation को discuss करते हैं जो कि guaranteed नहीं होती, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, और आप किसी सिचुएशन की बेस पे उसको बोलते हैं ना, लाइक इट कुड रेन टुनाइट, आपका वेदर फोरकास्ट में आ रहा है, या फिर कोई ऐसी हवाएं चल रही हैं, या फिर बादल आ रहे हैं, आप उनकी बेस पे बोलेंगे ना, लाइक इट कुड रेन टुनाइट। एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है ऐसा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सिटिंग इन योर होम एंड आपने कहीं घर से बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, ठीक है, एंड कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से अक्सर होता है ना, एहतजाज शुरू हुए होते हैं या कोई रैलियां निकल रही होती हैं, तो आप उसकी बेस पे हो सकता है कि कोई ट्रैफिक जैम भी हो, ठीक है। अब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी भी और इम्पॉसिबिलिटी भी है, किसी सिचुएशन की बेस के ऊपर आप कह रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन से लाइक दिस, लाइक
The road could be blocked due to traffic jam. अब ये could आपने यूज किया जो कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहा है, लेकिन आपने घर से बाहर जाना है तो रोड ब्लॉक भी हो सकती है. The road could be blocked due to traffic jam. So this is something showing this these examples showing us that we are talking about the future possibility that is not guaranteed, but according to certain situation we are assuming this. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Another very important point here is that like we cannot use do would for the future possibility. would की और different functions हैं, ठीक है. future possibility को जब हम discuss कर रहे हैं according to on the basis of certain situation, then आप would use नहीं करेंगे, आप could ही use करेंगे. Is it clear? जी मैम. Yes, ma'am. Okay, होगा. Like moving further, ये पॉइंट रिपीट कर दें. मैम लास्ट पॉइंट रिपीट कर. मैंने कहा कि आप could यूज करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करने के लिए, आप would यूज नहीं करते वहां पे, ठीक है. would के और डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, वो भी हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है. अभी तक हमने देखा कि जो could है वो can की पास्ट फॉर्म है, ठीक है. जब आप पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं देन आप could यूज करेंगे. वेयर can इज, जहाँ पे can आता है तो आप पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो आप could में ले जाएंगे. सेकंड हमने ये पॉइंट देखा कि when you are going to talk about the future possibility, in that case you are going to use could, ठीक है. that is something a possible situation, but not guaranteed. Third point is that we can use could for giving suggestions. We can use could for giving suggestions. Suggestions means to say like आप किसी को suggest करें कि like for example if you are in your home and you are getting bored and आप बहन भाई बैठे हुए हैं, आप फ्रेंड्स बैठे हुए हैं आपस में, तो एक सजेशन अगर कोई आपका one of your friends give you a suggestion like we could go on hiking, we could go on a party, like we could go to the restaurant for the fast food. So this is something in the case of suggestion, ठीक है. we could go, we could reach there. So ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप सजेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. सो इन दिस केस यू आर आल्सो गोइंग टू यूज could फॉर गिविंग सजेशंस, ठीक है. एंड देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सजेशन. अब देखो सजेशन भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि आप किसी को अगर देते हैं, कोई किसी को आप आइडिया देते हैं, किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, तो वो कंफर्म नहीं होता कि आप जिसको वो सजेशन दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो आपकी सजेशन पे अमल करेगा या नहीं करेगा, ठीक है. तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी सी सिचुएशन होती है ना. लेकिन आपने दे दिया, एक आइडिया दे दिया, एक पॉइंट अपना जो आप दे रहा था. आवाज नहीं आ रही मैम. आवाज नहीं आ रही. This is also not confirmed. So going to use. अब बताओ आइए बस. Yes मैम अब आ रही है. सबको आ रही है? जी मैम. Yes मैम. Yes, ma'am. In this case, we are also going to use could for giving the suggestions. ठीक है. अब मैं ये कह रही थी कि suggestions भी different forms की हो सकती हैं, जिसमें आप like जिसमें possibility है भी और जिसमें possibility नहीं भी है. आपको नहीं पता कि जिसको आपने suggest की है, like आपने किसी को कोई book suggest की है for the reading and you are not sure कि वो पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी या पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ठीक है. So the third tier. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. अब ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो आपका दिमाग है ना, इसमें बिठा के रखना है, क्योंकि जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे ये वहां पे ये रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है. तो वहां पे जब ये रिक्वायर्ड है तो तब आपको ये वाले पॉइंट्स अपने माइंड में होंगे, तो तब आप इजी वे में उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बिफोर डिस्कसिंग दैट. ओके, द fourth one is that we can also use could for request as well as for permission.
ठीक है, हम कुड को रिक्वेस्ट और या फिर परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट करना या परमिशन मांगना ये भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपको कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है। लाइक आप किसी से कोई परमिशन मांग रहे हैं कि मैं यहाँ चली जाऊं या चला जाऊं, तो वो भी एक ऐसी सिचुएशन है इन विच यू आर नॉट श्योर। ऐसी होती है ना कि जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई परमिशन मांगते हैं तो उसमें आपको श्योरिटी नहीं होती है। परमिशन मिल भी सकती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो भी सकती है, ठीक है, या नहीं भी हो सकती है। जैसे आप फेसबुक पे रिक्वेस्ट किसी को भेजते हैं तो वो भी एक रिक्वेस्ट आपने सेंड की है, तो आपको श्योर नहीं है कि ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। सो कुड आप यूज करते हैं फॉर एनी रिक्वेस्ट और फॉर एनी परमिशन। लाइक कुड आई यूज योर लैपटॉप, दिस इज समथिंग परमिशन, ठीक है। कुड आई यूज योर लैपटॉप, could you please close the door, like if you're watching TV and you're not liking that channel, ठीक है, तो आप कहेंगे could you please change the channel। if you're sitting on a dining table and you want salt, then आप कहेंगे could you please pass me the salt। so this is something in the form of request and in the form of permission, like, and one thing is very common among them. Who is going to tell me, like, could you please close the door, could I use your laptop? Who is going to tell me the similarity between these request and permission? एक सिमिलैरिटी है, दोनों में हम पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड मरवा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आप जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप परमिशन मांग रहे हैं, तो वो आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन फॉर्म में ही आ गया ना, कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, कुड आई यूज योर पेन फॉर 1 minute प्लीज, ठीक है। सो इन दिस वे ये एक क्वेश्चनिंग सी फॉर्म हो जाती है ना। एक क्वेश्चनिंग की फॉर्म जब होती है, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, that is not in a certain situation. Is it clear to you all these points? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक हो, जब मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊं इंशाल्लाह तब भी यस क्या मैं अभी। Now moving towards this talking about, ठीक है। Now let me discuss the difference between could and can। एक तो हमने ये देख लिया कि जी जो can है वो present में use करते हैं while talking about any present possibility, and could हम use करते हैं for the past possibility, past में जो हो चुका होता है, ठीक है, past form है can की could। But there are few more differences between can and could which are very very significant to know। can आप यूज करते हैं for any general statement। general statement means to say that is possible, that is confirmed and that is possible, like you can do it, ठीक है। अब you can do it, अब means to say you are confirmed that you can do it, I can go, this is something that is very clear, ठीक है। बट could जो है, अब जैसे हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं, हम परमिशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, हम सजेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें आप ये अपना could जो आपका मॉडल वर्ब है ये आप यूज कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, आप इन डिफरेंट सिचुएशंस में भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हमारी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। सो could जो है, could is something that is not guaranteed, that is not certain। certain होता है यकीनी, ठीक है, that is not certain। can is something like it can be very cold in winter, it can be very cold in winter, or I can say it can be very warm in summer, so it's confirmed, ठीक है। हम सबको पता है कि गर्मियां बहुत गर्म होती हैं, सर्दियां सर्दी होती है उसमें, it's confirmed and it's a general statement and it's possible, ठीक है। so that's why I'm saying that it can be very warm in summer, ठीक है। like but could is something that is not clear, that is not certain। हम could इस तरह इस सिचुएशन में तो यूज नहीं कर सकते ना कि जी लाइक सर्दियों में सर्दियां होती हैं, गर्मियों में गर्मी होती है, लेकिन ये तो कंफर्म चीज है, ये कोई अनसर्टेन सिचुएशन तो नहीं है, ठीक है। सो लाइक अब अनसर्टेन सिचुएशन ऐसी हो सकती है, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इट कुड रेन टुनाइट, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिचुएशन यू आर सेइंग दिस थिंग, ठीक है। सो मींस टू से कैन इज यूज्ड
For the general statement means to say that is possible. Could is used for something that is possible but also not possible. That is not clear to you. Is it clear to you all these points regarding could? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Acha. Moving further, then we have would. Now let me discuss this would to you. Is there anyone who will tell me कि हम would कब use करते हैं? कोई background knowledge? मैम will की past form. Will की past form. will की past. present के होते हैं, बात कर रहे होते हैं और past के बारे में बता रहे होते हैं. Very good. और कुछ इसके बारे में बताओ. Hypothesis के लिए. इस बार अभी Imaginations के लिए. Very good. Suggestion के लिए. इसको भी देखते हैं. ठीक है. So would is something. It expresses conditional mood. Okay, yes, that also expresses as conditional mood. So would जो है that is directly the past form of will. ठीक है. Like will आप किसके लिए use करते हैं? For the future tenses. ठीक है. Like I will go. ठीक है. So but आप would use करते हैं where past is required. So let me give you example and then it will be more clear to you. Like if the statement is you will make him study. You will make him study. What is meant by this statement? You will make him study. जी मरवा. Possibility है. Then I am sure that I will make him study. I am sure. I will make him study. So this is something about the future that you will make him study. आप उसे पढ़ाई करवा लेंगे. ठीक है. I will. This is something regarding the future. But when you are going to talk about, so point arises how we can use this would in order to talk about the past. ठीक है. हमें तो पता है कि will तो हम future के लिए यूज करते हैं. तो future का और past का आपस में क्या ताल्लुक? ठीक है. ये confusion arise होती है हमारे mind में. लेकिन the point is अक्सर ऐसे होता ना. अच्छा इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बात पूछती हूँ. अक्सर ऐसे होता ना कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो. ठीक है. कोई सीरीज चल रही है या फिर कोई टूर्नामेंट चल रहा है. लाइक वर्ल्ड कप है, 2020 है. तो जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच आ गया. पाकिस्तानी अक्सर ना मैच में नर्वस हो जाते हैं. ऐसा होता भी है. तो ये होता है कि जी अक्सर हम कह देते हैं इन्होंने तो हार जाना है. ये नहीं कि अच्छा खेलते हैं, इन्होंने हार जाना है. इनकी बैटिंग ही नहीं अच्छी. इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है. ठीक है. तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है मुझे पता था कैसे. और जब असल में ऐसा हो जाता है और पाकिस्तान हार जाता है तो हम कहते हैं असल में मैंने कहा था ना ऐसा हो जाएगा. मुझे पता था ना ऐसा हो जाएगा. एक ऐसी सिचुएशन होती है ना कभी कभी. Yes, ma'am. यस मैम. जी मैम. नॉर्मली कभी कभी वैसे भी अगर क्रिकेट मैच से हट के हम कहें कि जब हम नॉर्मली अक्सर कह रहे होते हैं कि मुझे पता था ऐसा ही होगा. मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा. ऐसी सिचुएशन होती है. अब देखो अब ये एक ऐसी सिचुएशन है लाइक मुझे पता था कि ऐसे ही होगा. ठीक है. अब ये मीन्स टू से दिस इज समथिंग अबाउट द पास्ट. मुझे पता था. आपको पता था कब? आपको पास्ट में ही पता था. ठीक है. रिगार्डिंग फ्यूचर assumption. आपने एक assumption की थी. आपने एक hypothesis क्रिएट किया था. What is meant by hypothesis? Imagination. Spirituality. Imagination नहीं कहेंगे. Imagination नहीं Statement. कहेंगे. ना हो भी वो सही है या गलत. Non-ideal. जब हमारे पास पास्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन के बेस पे हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं. एग्जैक्टली हम किसी assumption की बेस पे हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं. assumption क्या है? अब जैसे पाकिस्तान इंडिया से कई मैचेस पीछे हारा है तो उसी की एक रिकॉर्ड की बेस पे हम बोलेंगे ना कि मतलब ये तो ऐसा ही है. जैसे अब एक स्टूडेंट हो और जो है वो क्लास का बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. वो बहुत अटेंटिव रहती है या रहता है. ठीक है. और उसने बहुत अच्छे क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उसकी और उसकी फर्स्ट पोजीशन आ गई क्लास में. तो टीचर कहेगी कि मुझे पता था इसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि वो उस बच्चे की परफॉर्मेंस ऐसी रही है या उस बच्चे की परफॉर्मेंस ऐसी रही है. उस बेस पे टीचर ने कहा है कि मुझे पता था कि ऐसे ही होगा. ठीक है. सो इन दिस वे आप यूज करते हैं
वुड लाइक इस सिचुएशन, इस किस्म की जब सिचुएशन होती है ना, तब आप यूज करते हैं वुड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल. Like the statement was, I will make him study. It's simple present. It's present कह रही हूँ. It's simple future. ठीक है? It's something like simple future. Like when you're going to convert it into would, I knew you would make him study. I knew you would make him study. Who is going to explain this example? I knew it. You would make him study. I was sure about something that you will make him study. आपने ठीक बताया, लेकिन इतना जज्बाती नहीं होते हैं. बाकी बच्चों की तरह हैंड रेस किया करो. जी किरण. Sorry. कोई बात नहीं. मैम इसमें वो कह रहा है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम उसे स्टडी करवा सकते हो. वो बता रहा है कि उसे पहले ही पास्ट में पता था कि ऐसा हो सकता है. ठीक है, लाइक मुझे पता था कि तुम उससे पढ़ाई करवा लोगे. I knew you would make him study. Like if the situation is, I was sure I would pass the interview. मुझे पता था मैं इंटरव्यू पास कर लूंगी. I was sure I would pass the interview. So on the basis of this situation, you are going to use would in the place of will as a past form. Is it clear? Yes ma'am. Yes, ma'am. जी मैम. ठीक है. मूविंग फर्दर, अब मुझे बताया था एक बच्ची ने कि हम वुड को इमेजिनेशंस के लिए भी यूज करते हैं. दैट्स वेरी ट्रू. ठीक है, हम वुड को इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए भी यूज करते हैं. हमने कुड यूज किया था फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए. ठीक है, समथिंग दैट इज पॉसिबल. पॉसिबिलिटी है भी है. ठीक है, हो भी सकता है. इट कुड रेन टुनाइट, बारिश हो सकती है. ठीक है, लाइक इट बट इट वुड रेन टुनाइट इज नॉट ट्रू. ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी ये इफ यू वुड आप यूज करते हैं जब आप इमेजिनरी सिचुएशंस की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, एक इमेजिनरी सिचुएशन, इट वुड रेन टुनाइट. अब रेन होनी है, ये कोई इमेजिनेशन तो नहीं है ना इसकी. अब ये तो थोड़ी सी इसमें रियलिटी भी है. इमेजिनेशन कंडीशन ऐसी होती है जो कि अनरियलिस्टिक सिचुएशंस होती हैं. ठीक है, लाइक इफ आई हैड अ प्लेन आई वुड गो टू वर्ल्ड टूर. ठीक है, अब ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, खाम ख्याली है, दिमागी दुनिया है कि जी अगर मेरे पास एक जहाज होता तो मैं वर्ल्ड टूर पे निकल जाती. अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि अनरियलिस्टिक है. ये टोटली इमेजिनेशन है. ना मेरे पास जहाज है, ना मेरे वर्ल्ड टूर पे जाना है. एक इमेजिनरी सी सिचुएशन है. ठीक है, सो इफ आई हैड अ प्लेन आई वुड गो टू वर्ल्ड टूर राइट नाउ. सो आप वुड यूज करते हैं फॉर टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशंस. कुड आप यूज करेंगे जिन चीजों में आपकी पॉसिबिलिटी है भी है. ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशंस में पॉसिबिलिटी कोई नहीं होती ना. मेरे पास कहाँ से जहाज आना है. ठीक है, तो मैंने कहाँ से वर्ल्ड टूर पे जाना है. इन दिस केस यू आर गोइंग टू यूज वुड फॉर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी कंडीशंस एंड कुड while talking about the future possibility situations. Is it clear? Yes, ma'am. Yes Yes, ma'am. ma'am. क्या अब नेक्स्ट पॉइंट जी हम ये ma'am. देख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि हम कुड और वुड में सिमिलैरिटी भी कुछ सिचुएशंस में आ जाती है. वो ये होती है कि आप वुड यूज करते हैं फॉर परमिशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. आप रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए आप वुड एंड कुड दोनों यूज कर सकते हैं. ठीक है, would you email me your address? Could you please email me your address? ठीक है, like would you please open the door? Could you please open the door? In both the situations you can use could and would while talking about a request as well as for the permission. Would it be okay if I use your pen? Could I use your pen? ठीक है, so while making the request and while asking for the permissions you can use would as well as could. Is it clear? Yes, ma'am. Yes ma'am. अब ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने दिमाग में बिठा के रखने हैं जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को डिटेल में करना है. ठीक है, इसलिए मैं पहले आप लोगों को ये बता रही हूँ ताकि बाद में जाके हमें प्रॉब्लम ना हो कि हमने कुड का यूज कर रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं. ओके, द थर्ड वन इज शुड. ठीक है, where we should use this should.
ठीक है. So is there anyone who will tell me regarding this should? What's your background knowledge? Zero one. Ma'am, should is the past form of shall. Okay, ठीक है, मान लेती हूँ. निम्रा उमर. Ma'am, it is used to express opinion and to give advice. Okay, ठीक हो गया, मान लिया. जवेरिया नजीब. Ma'am, it is used to indicate obligation. Obligation, ठीक है, ये भी मान लिया. Should आप यूज करते हैं. हम should को डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये shall की past form है. ठीक है, the first point is this. हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि should जो है वो shall की past form है, but it can be used in different sentences. In some sentences as a past tense. It can be used as a past tense of shall in some sentences. ठीक है, we will discuss them while talking about the conditional sentences. हम इस point को भी देखेंगे how we can use shall as a past form of how we can use should as a past form of shall. ठीक है. Further एक बात ये होगी in some sentences. ठीक है, हर sentence के अंदर हम जैसे हम would को हम past form of will use कर सकते हैं हमेशा हर जहाँ पे required होगा. ठीक है, could को भी हम as a past form use कर सकते हैं can की जहाँ वो required होगा, जहाँ आपने वो use करना है. ठीक है, but हर situation में should use नहीं होता. ठीक है, shall ही आएगा, लेकिन कुछ सिचुएशन में should भी आप यूज कर सकते हैं. इसको भी आप देखेंगे. Further we can use shall or should. Let me give you one example. Two statements, two sentences, and then you will tell me the difference between both of them. I shall call you. ये एक हो गई. लिख लो इसको अपने रजिस्टर्स पे या पेजेस पे जो भी यूज कर रहे हो. I shall call you. I should call you. Who is going to tell me the difference between both of them? I shall call you. I should call you. ये मरवा, नुमान, इरकिरन, बख्तावर, इन्हीं बच्चों का काम रह गया पढ़ने के लिए. नामुल्ला किधर है? हाँ जी नामुल्ला. Yes, ma'am. Would you please tell me the difference between this could and this should and shall? Comparison. I shall call you and I should call you. Hurry up. मैम should आगे आया तो लाजमी करना है. Yeah. What about shall? I shall call you. हाँ जी hurry up. इनामुल्लाह. Yes, ma'am. हाँ जी I shall call you. What is meant by this? हाँ जी नामुल्लाह. I shall call you. What is meant by this? In this shall future, in future. Yes, this is something regarding future. ठीक है. Like I shall call you, I will call you. This is something about the future simple. ठीक है. बच गए हो. And should be. I shall. ठीक हो गया. I should call you is something that is like should आप यूज करते हैं जब कोई एक obligatory सी सिचुएशन होती है. Obligatory means to say एक लाजमी सी सिचुएशन होती है. जब आप अपनी स्टेटमेंट में स्ट्रेस देते हैं. I should call you. I should go there. I should reach there at by 6 p.m.
ठीक है। सो शुड आप जब यूज कर रहे होते हैं तो आपकी स्टेटमेंट में एक ऑब्लिगेटरी सी सिचुएशन होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई शैल कॉल यू इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे shall and should both are giving us different meanings. Furthermore, we can also use should for obligations. We have seen that we can also use should for giving suggestions. We can also use should for giving suggestion. Like, you should be very careful. You should study hard. This is I am giving you the suggestions, ठीक है। So in this way, अब ये should भी use किया, इसमें suggestion भी दी, और suggestion भी दी तो उसके साथ साथ एक stress भी दिया अपनी बात को, ठीक है। Like you should do it. जी बख्तावर, do you want to say something? नो मैम, जब आपने क्वेश्चन पूछा था इसलिए किया तो मैं नीचे कर लेती हूँ। ठीक हो गया। सो शुड आप अपनी किसी को ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप सजेशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप किसी को सजेशन मींस टू से आप ओपिनियन भी दे सकते हैं किसी को, लाइक आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज. This is something I'm giving you suggestion, as well as suggestion and opinion are something have some similarity between both of them. Opinion भी एक ही चीज होती है, आप अपना opinion देते हैं किसी को, suggestion भी यही होती है, आप किसी को suggest करते हैं, मानना ना मानना अगले की बात होती है, अगले की मर्जी होती है. I think you should buy a red dress. This is something also about the suggestion. आप opinion दे रहे हैं अपना, ठीक है, and should आपने use किया. अब इधर आप could यूज नहीं कर सकते, आप इधर would यूज नहीं कर सकते, बट आप should ही यूज करेंगे, ठीक है. Then we can also use should to ask for the opinion. अभी तक तो हमने ये देखा ना कि आप suggestion देने के लिए, obligation के लिए, opinion के लिए यूज करते हैं. If you want to ask for the opinion, आप मशवरे भी तो मांगते हैं ना किसी से. So like, what should I do? What should I wear? What should we do now? So these all things all these examples are showing us like this is something you are asking for the opinion. So when you will ask for the opinion, ठीक है. Request is something different, ठीक है. Request आप ये भी कह सकते हैं, आप किसी से कोई बुक मांग रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कहीं जाने के लिए आप रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, आप कोई पार्टी करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, आप छुट्टी करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं. Opinion is something very different from them. आप ओपिनियन किसी मशवरा कोई मांगते हैं, ठीक है. तो आप what should I do now? What should I do with this leftover food? ठीक है. So in this case आप ask for opinion मांगने के लिए भी asking for the opinion आप should use करते हैं. Is it clear? मतिया शाहिद, do you want to say something? Yes ma'am. मैम सजेशन देने के लिए भी तो हम would use कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी हमने should यूज किया सजेशन देने के लिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या यूज करना है? सजेशन वो डिफरेंट थी एंड ये डिफरेंट है. अब मैं तुम्हें डिफरेंस समझाती हूँ इन दोनों सिचुएशंस में. अब वहां पे जब हम वहां पे सजेशन दे रहे थे, ये इसमें लाइक वुड में तो हमने ये बात की है ना कि जब हम रिक्वेस्ट कर देते हैं करते हैं, जब हम परमिशन मांगते हैं तब हम वुड यूज करते हैं. यस ठीक है, ठीक हो गया. तो ये जो हम कुड यूज करते हैं, कुड में तो हम परमिशन भी मांग रहे हैं, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम दोनों सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं. तो हम कुड जो है वो सजेशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं. वी कुड गो. आप तुम एक और चीज भी देखो, शुड में और कुड में डिफरेंस जब हम सजेशन दे रहे हैं, ठीक है. अब जो हम सजेशन दे रहे हैं कुड में, ठीक है, तो उसमें एक ऐसी सिचुएशन है जो इसमें हमारे पास चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है. लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वी कुड गो ऑन हाइकिंग, वी कुड गो ऑन अ पार्टी. अब ये एक ऐसी सिचुएशंस है जिसमें आप जो इसमें स्ट्रेस नहीं है, ठीक है. ये इसमें और ऑप्शंस भी आपके हैं, इसमें आपके पास और ऑप्शंस भी हो सकती हैं, चॉइसेस हो सकती हैं. या ये जिसको आप सजेस्ट कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करे या ना करे. अब जब हम ये सजेशन दे रहे हैं ना किसी को शुड में, जब हम शुड यूज कर रहे हैं, लाइक एवरीवन शुड गो नाउ. अब यहाँ पे शुड जब हो गया तो इट मीन्स टू से आप एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है. आप एक स्ट्रेस दे रहे हैं अपनी बात को, आप उस चीज को ऑब्लिगेटरी बना रहे हैं, आप उस चीज को लाजमी बना रहे हैं, ठीक है. लाइक आप उसमें उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी बात को, ठीक है. यू शुड गो नाउ, लाइक वी शुड गो टू पार्टी. दिस इज समथिंग लाइक वी शुड गो, तो हमें जाना चाहिए,
ठीक है, बट वी कुड गो ऑन अ पार्टी मींस टू से आप इसमें एक स्ट्रेस नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप शुड यूज कर रहे हैं तो उसमें मींस टू से आपकी बात में वो वजन है, आपकी बात जो है वो स्ट्रेस वाली है, स्ट्रेस वाली मींस टू से एक लाजमी सी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, प्रायोरिटी दे रहे हैं आप उस बात को। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक हो गया। तो हमने ये देख लिया कि कुड हमने कहाँ यूज करना है, कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, फॉर सजेशंस, फॉर रिक्वेस्ट, फॉर परमिशन। हमने कुड एंड कैन में डिफरेंस भी देखा, फर्दर हमने विल को देखा, जो कि विल जो है वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म आ जाती है, और हमें वुड को कहाँ यूज करना चाहिए, इमेजिनरी सिचुएशंस में यूज हो रहा होता है, इमेजिनरी सिचुएशंस आर समथिंग दैट इज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक, ठीक है। तो उसके अलावा विल और वुड में हमने ये डिफरेंस भी देख लिया कि जो विल होता है ना वो आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी बिलीव्स अबाउट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, ठीक है, लाइक Maria will be in her classroom. This is something about the belief about the future, ठीक है, while sitting in the present state you are talking about the future. Maria will be in her classroom, but when you so would आप use कर रहे होते हैं when you will talk about the I can say when you describe your past beliefs, ठीक है, लाइक मीन्स टू से आप जब हाइपोथेसिस कर रहे होते हैं, आप इमेजिनेशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस को जब आप कर रहे हैं तो मीन्स टू से आप किसी सिचुएशन की बेस पे वो हाइपोथेसिस क्रिएट किया था। शुड को हमने देखा कि वेयर वी शुड यूज शुड इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट सेंटेंसेस। मूविंग फर्दर, इज इट क्लियर टू यू टू एवरीबॉडी रिगार्डिंग दिस शुड, कुड एंड वुड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Now let's come towards this. Now let's come towards this conditional sentences. Conditional sentences. I really want to know your background knowledge regarding these conditional sentences. जी तेरी। मैम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। क्या? मैम ये जो आप हमें पढ़ाती हैं आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लिया करें, हमारे ना नेट इतनी देर आता नहीं है, फिर वो क्लास नहीं कनेक्ट होती, कर लिया करो, आधा मुझे तो समझ कोई- आता है। मैम वो क्यों होती किसी नहीं का- हमसे। किससे नहीं होती? पहले तो आप लोग क्लासेस को रिकॉर्ड कर लेते थे, अब क्यों नहीं होती? मैम पता नहीं मैम, मेरी ना स्क्रीन शेयर होती है ना, यहाँ से रिकॉर्ड होता है और नेट में देर कनेक्ट ही नहीं होता, फिर समझ आधी समझ आती है, फिर आधा मैम आपने अंदर से अलाउ गायब नहीं हो किया जाता है। हुआ। मैम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मोहम्मद शुएब कह रहा है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। मोहम्मद शुएब शेयर भी किया करो ना क्लास के साथ। मैम वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, इनको पता है चैनल कौन सा है मेरा, सारी वीडियोस मैंने अपलोड भी कर देता हूँ टाइम टू टाइम। वहां से देख लिया करो तेरी, या बाकी बच्चे जो भी देखना चाहते, ठीक है? ठीक, पता है क्या है, मेरे पास भी इतनी स्पेस नहीं होती है कि मैं उनको रिकॉर्ड करके बैठूं, फिर मुझे वो डिलीट करनी पड़ती है, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, ठीक है? और भी इतनी बुक्स हैं सेव, तो वो मैं डिलीट नहीं कर सकती हूँ जिन्होंने स्पेस पूरी कंज्यूम की हुई है। ओके, टेल मी अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस, व्हाट डू यू नो अबाउट देम? शाज़मीना। मैम कंडीशनल सेंटेंसेस में एक कंडीशन दी जाती है कि अगर ऐसा काम होगा तो फिर दूसरा होगा, एक कंडीशन की बेस होती है। ठीक हो गया जी नोमान। Ma'am, there are 4 conditional sentences. जिनमें मैम कंडीशन दी हो जाती है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जिस तरह प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट है तो फ्यूचर होगा। ठीक ये हो गया। कैटेगरीज है 4 कंडीशन सेंटेंसेस। हाँ ऐसा ही है, ठीक हो गया। फाइका मुबशर। मैम इसमें ये होता है कि हमने अगर कोई काम करना है तो जैसे हम अगर स्टडी यानी वर्क हार्ड करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा ना, तो ये इस यानी जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो कंडीशनल सेंटेंसेस, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, means to say we are going to talk about certain conditions, on the basis of certain conditions then we will get the result, ठीक है? अब जैसे हमने टेंसेस को डिस्कस किया ना, हमने टेंसेस को डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है, ठीक है? हमने प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन सी कंडीशन में यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सी कंडीशन में यूज करना है, बट कंडीशनल सेंटेंसेस आर
quite different from that. Within the conditional sentences, we have a condition. ठीक है, if you will study hard, like बच्ची ने example दी है, if you will study hard, ये condition है, ठीक है, तो then you will get good result, ठीक है, if you will study hard, you will get good result. So on the basis of condition, आपका एक result आपको provide होता है, ठीक है, एक as a general intro आपको बता रही हूँ, ठीक है. So conditional sentences basically tells us about the condition as well as the result. हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये cause and effect हो सकता है. एक cause होता है ना, और उसका फिर एक effect निकलता है, ठीक है. Cause means to say आप कोई action perform करते हैं और उस action का फिर आगे से reaction होता है. In this way आप conditional sentences अपने generate करते हैं. So conditional sentences are basically used to explain 4 different situations, 4 different conditions, ठीक है. नुमान ने बताया हमारे पास 4 different conditional sentences होते हैं, 4 different types होती है conditional sentences की. So the very first one tells you about, so the conditional sentences basically used to explain what actually happens. Actually, this actually word is very, very important. What actually happens? What is the reality? Reality means to say that is going to talk about the general truths. ठीक है, general truth क्या होते हैं? मैम जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज नहीं होते. Honesty is best policy. Greed is the curse. Allah is one. Allah is one. Yes, ma'am. Union is strength. Strength. हाँ, Then union is sex in the West. unity is strength, honesty is the best Honesty policy. the best policy. तो आपको लगता है कि वो आपको लगता है ये कंडीशनल सेंटेंसेस है? मैम ये आपको जनरल लगता है ये जनरल ट्रूथ है, ठीक है, जनरल ट्रूथ्स है, ठीक है, बट इसके अलावा भी कुछ हमारे नॉर्मल रूटीन्स के जनरल ट्रूथ्स होते हैं, ठीक है. अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कंडीशनल सेंटेंस तो ना हुआ, लेकिन ये जनरल ट्रूथ तो है. बट व्हाट आर दोस जनरल ट्रूथ्स व्हिच वी कैन यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेस? So one thing is very important, like one situation in which one always causes another thing. Means to say एक सिचुएशन है और उसका ऑलवेज रिजल्ट एक निकलता है. अच्छा मुझे बात बताओ, अगर हम भूखे रहेंगे, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे मैम, मर जाएंगे. फौरन ही मरना पहुंच जाता ना. खाना खाने से अगर एक खाना नहीं खा रहे तो मरता तो कोई नहीं है ना, कोई एक टाइम तक खाना नहीं खा रहे, सिर्फ मरते नहीं है. नहीं मैम मरते तो नहीं है. मैम मरने के करीब हो जाते हैं. अच्छा सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं, ठीक है, मेरी मरने वाली हालत हुई हुई है, बहुत भूख लगी हुई है, चूहे दौड़, ऐसा ही होता है ना. लेकिन अगर हम खाना नहीं खाएंगे, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ये जनरल ट्रूथ है कि हमें भूख लगेगी, इट्स नेचुरल, ऐसा ही बात है ना. यस मैम. जी मैम, जी मैम. अगर हम दांत ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्मेल आएगी, खराब हो जाएंगे. कुछ नहीं होगा. स्मेल आएगी, खराब हो जाएंगे, जर्म्स खराब हो जाएंगे मैम. खराब हो जाएंगे. कैविटीज मैम. ऐसा ये कैविटीज हो जाएंगी, जर्म्स आ जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे. तो एक रिजल्ट निकला ना, एक सिचुएशन, जी मैम, जनरल ट्रूथ है. एक कॉज हुआ और उसका एक रिजल्ट निकला, ठीक है. सो दिस इज समथिंग अबाउट ट्रूथ, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है. मूविंग फर्दर, the conditional sentences are also used to explain what could happen. अभी हमने फर्स्ट पॉइंट देखा what actually happen, हम इनको डिटेल में भी करेंगे. Second point is that what could happen. Who's going to tell me about this point? What could happen? हमने कोड को एक्सप्लेन किया है, अभी बहुत डिस्कस किया है. What could happen? Any possible condition and its result. पॉसिबिलिटी जो कंफर्म ना हो. Possibility.
अच्छा, so I was on the point like हमने अभी तक ये देखा what actually happens, what could happen within the conditional sentences. Conditional sentences में हम discuss करते हैं what actually happens, what could happen. Could happen means to say to talk about the future possibilities. Third point is that what we wish would happen. Who's going to tell me about this one? What we wish would happen. हमने would को भी discuss किया. What we wish would happen. जी अशरफ. मैम जिसमें हमारी इमेजिनेशंस हो, हमारी विशेस की इमेजिनेशंस, मतलब कंफर्म वो भी नहीं होती लेकिन वो इमेजिनेशंस होती है हमारी. ऐसा ही है. So expressing outcomes that are completely unrealistic. Unrealistic means to say that these are our imaginations. ठीक है. So we also discuss our imagination within the conditional sentences. So the fourth point is that we discuss what might have happened. What might have happened. Might have happened means to say कि हम ऐसी situations को discuss करते हैं कि past में अगर ऐसा हुआ होता तो अभी ऐसा होता, अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा होता. अक्सर ऐसा होता ना, हम इस तरह डिस्कस करते हैं. That present circumstances, ठीक है, present circumstances हमारे मुख्तलिफ होते हैं अगर ऐसा हुआ होता. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े हो जाते हैं, 30 साल 35 साल उम्र हो जाती हैं और उनके पास जॉब्स नहीं होती, वो अच्छे उनके पास तालीम नहीं होती है. तो फिर वो सोचते हैं ना कि अगर हमने या कोई ऐसे नालायक स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अच्छा नहीं पढ़ते हैं, तो फिर अच्छी जॉब्स नहीं मिलती उनको, मेहनती नहीं होते हैं. तो फिर वो सोचते हैं ना इतनी बड़ी उम्र में आके, 30-35 साल की उम्र में आके, कि अगर हमने अच्छा पढ़ लिया होता, हमने मेहनत कर ली होती, तो आज हमारे हालात मुख्तलिफ होते हैं, हम अच्छी, मतलब हमारी कंडीशन मुख्तलिफ होती है. ऐसा होता है ना? यस मैम. अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं होने देनी. ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह एक अच्छी स्टूडेंट बन के अपनी लाइफ गुजारनी है और अच्छी इंशाल्लाह कामयाब होना जिंदगी में. ठीक है, इंशाल्लाह मैम. इंशाल्लाह मैम, आप दुआ करें. जरूर. मैं अपने सब स्टूडेंट्स के लिए करती हूँ, जितने भी मेरे पीछे गुजरे हैं या जो अभी हैं या जो आगे. ठीक है. So this is something what might have happened. So means to say that present circumstances would be different if something different had happened in the past. So this is something. So these things are basically basically the points that we discussed in the conditional sentences. What actually happens, what could happen, what we wish would happen, what might have happened. So you see there are four different conditions, or I can say there are 4 different forms, 4 different types of conditional sentences which we are going to discuss. And you see they are not same. All these are different from each other. ठीक हो गया. So मैम रिपीट कर दें ये 4. मैं रिपीट कर देती हूँ. What actually happens, ठीक है, what could happen, what we wish would happen, what might have happened. अब इनको हम डिटेल में देखते हैं. ठीक हो गया. कंडीशनल सेंटेंसेस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम विद इन द कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास 2 क्लॉजेज होती हैं. ठीक है, हमने जनरल ट्रूथ तो देख लिया कि हम जनरल ट्रूथ भी हमारा आ जाता है, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, दीज ऑल थिंग्स आर द जनरल ट्रूथ. लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हमारे पास 2 क्लॉजेज होती हैं. ठीक है, और जो 2 क्लॉजेज होती हैं उनमें से एक क्लॉज जो होती है वो इफ क्लॉज होती है. इफ मीन्स टू से कंडीशन हमें दी जाती है, कॉज हमें प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, एंड जो हमारी सेकंड क्लॉज होती है वो हमारी रिजल्ट की क्लॉज होती है. ठीक है, उस कॉज का इफेक्ट क्या है, उस कंडीशन का रिजल्ट क्या है. ठीक है. सो इन दिस वे आप अपने कंडीशनल सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं. 2 क्लॉजेज इसके अंदर होती हैं. ठीक है. फर्दर अब जब देखो हमने इफ क्लॉज लगा दी तो मीन्स टू से ये हमारी एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाती है. ठीक है, दैट नीड्स एन आंसर मीन्स टू से दैट नीड्स ए रिजल्ट. ठीक है. सो कंडीशनल सेंटेंसेस we have 2 clauses and we also have a conjunction if. ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स में इफ देन आप यूज करते भी हैं, देन आप ना भी यूज करें, देन आप यूज कर भी लें तो ठीक है. ठीक है, हमें रिजल्ट की समझ आ जाती है. सो इन दिस वे आप अपनी एक कंडीशनल सेंटेंसेस को जनरेट करते हैं. मूविंग फर्दर वी आर टुडे इनको हम स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं. ठीक है, अभी तो हम इनका एक जनरल इंट्रो देख रहे थे कंडीशनल सेंटेंसेस का. सो नाउ डिस्कस देम स्पेसिफिकली.
the very first type of conditional sentence is zero conditional sentence. Zero, Z-E-R-O. Zero conditional sentence. Okay, who is going to tell me about the zero conditional sentence? सिंपल टेंस हम जिसमें कोई कंडीशन ना हो, सिंपल टेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज से की हो। ठीक हो गया। और कुछ? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये भी मैम रियलिटी में अगर ऐसा हुआ तो फिर ये लाजमी होगा इस तरह। General truth. Exactly. So zero conditional sentence basically tells us what actually happens. ठीक है? Actually होता क्या है? So when we are going to talk about the general truths, so general truth में we know very well कि हमने present simple tense में ये discuss किया था, present indefinite भी जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर हम general truths को discuss करते हैं. So here we are going to use the structure of the present simple. ठीक है? So present simple जब हमारे पास condition एक ऐसी condition है जो कि realistic condition है, ठीक है? मीन्स टू से हम present simple यूज करेंगे और उसका रिजल्ट भी जो हमारे पास निकल रहा है that will also be है. अब बताओ आइए. मैम ठीक है। यस मैम, ठीक आ रही है मैम सही आ रही है। इसको उठाओ ये जो पड़ा हुआ. अच्छा ठीक है. सो प्रेजेंट सिंपल आप रिजल्ट में भी डिस्कस करते हैं और अपनी कंडीशन में भी. जब आपके पास कंडीशन एक प्रेजेंट कंडीशन एक रियलिस्टिक कंडीशन है, रियलिस्टिक कंडीशन, ठीक है, पॉसिबल कंडीशन, सो मींस टू से आपका जो रिजल्ट होगा दैट विल आल्सो बी बेस्ड ऑन द प्रेजेंट रियलिस्टिक कंडीशन. आपका रिजल्ट भी रियलिस्टिक होगा. लाइक हमने देखा कि जब हम भूख लगती है, जब हम खाना नहीं खाते तो भूख लगती है. खाना नहीं खाते भी एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, ठीक है. भूख लगना भी एक रियलिस्टिक सिचुएशन है. People get hungry if they don't eat. It's very simple and it's very real. Moving further, so real conditional. So zero conditional sentences are basically the real conditions that result. उनके results भी जो होंगे that will also be same. ठीक है. अच्छा, let me know. If you leave ice cream in the sun, what will happen? It melts. It melts. Very simple. It melts. So do you think that this is a general truth? Yes मैम। Yes ma'am. है ना. ठीक है. हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हम धूप में ले गए तो वो जाहिर सी बात है वो मेल्ट हो जाएगी. ठीक है. ओके, सो लेट मी नो, अगर आंधी आई हुई है, ठीक है, आंधियां आती हैं गर्मियों में और बहुत तेज हवा चल रही है. If the wind blows, what actually happens to trees? ट्रीज के साथ क्या होता है? Go down. Break down. They move. We know very well. ठीक है. हवा आएगी तो इट्स वेरी सिंपल कि दरख्त मूव करेंगे. अगर हवा तेज भी है, हवा तेज नहीं भी है, बस हवा चल रही है. If the wind blows, ठीक है. So it's very simple. The trees move. It's also something realistic situation. When you will smoke, what will happen? Lungs will be damaged. Our lungs will get damaged. No, lungs damage हो जाएंगे. So how you are going to make it a conditional sentence? By using the present tense. How you are going to make it as a zero conditional sentence? By using the present simple tense. If you smoke, हाँ बोलो. If you smoke, you die. Die नहीं हो जाते, lungs पहले डैमेज होते हैं. ठीक है. So try to convert it in this sense कि हम स्मोकिंग करेंगे तो lungs डैमेज हो जाते हैं. If you smoke, your lungs damage. If our lungs gets damaged, ठीक है. When people smoke, their lungs gets damaged. It's very simple, ठीक है. And it's very obvious and it's very true. Smoking करेंगे तो lungs damage होंगे. Lungs damage होंगे तो फिर नुकसान ज्यादा होगा. और जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं जो स्मोकिंग करते होते हैं और उनको कोरोना हो जाए तो वो ज्यादा डैमेज हो जाते हैं क्योंकि उनके लंग्स पहले से ही डैमेज होते हैं. ठीक है. और जब लंग्स डैमेज होंगे तो कोरोना अगर हो जाए तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है.
ठीक है, and all these things are what? All these things are the realistic conditions. ठीक है, so आप अपने जो conditional sentences होते हैं, zero conditional sentence, that is the first type of conditional sentences in which you will talk about the realistic condition, and or I can say the general truths. And while talking about those general truths, you will use your present simple tense in both the condition as well as in the result. Moving further, I hope it's clear to you regarding this type of conditional sentence. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक हो गया. I'm going to speak few sentences. ठीक है, कुछ sentences बोलने लगी हूँ. इनको अपने रजिस्टर्स पे या जो भी आपके पास है उसके ऊपर लिखो. When you get home, call me. मैम रिपीट. मैं रिपीट करती हूँ. When you get home, call me. लिख लिया? जी मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. When you get home के बाद आपने कॉमा लगाना है. ठीक है. Second sentence. If Maria calls, comma. If Maria calls, comma, don't answer the phone. Don't answer the phone. If Maria calls, लिख लिया? Yes, ma'am. Don't answer the phone. Third sentence. If you accidentally drop some trash होता है कूड़ा, TRASH. If you accidentally drop some trash, comma, if pick it up. Pick it up. लिख लिए? Yes, ma'am. रिपीट कर दें एक दफा. Repeat कर देती हूँ. First one is when you get home, call me. ये पीछे जहाजों की आवाजें इनको जरा इग्नोर करना. When you get home, comma, call me. If Maria calls, comma, don't answer the phone. If you accidentally drop some trash, comma, pick it up. लिख लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In these three sentences, we have in the second clause we have call. आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आ रही है आवाज. In these three examples, call me, don't answer the phone, pick it up. ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस को रेफर कर रहा है? हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़े हैं. Call me, don't answer. Imperative sentences. Imperative sentences. Very good. All these are giving us the sense of imperative sentences. So means to say, imperative sentences क्या होते हैं अमीर हमजा? अमीर हमजा? अमीर हमजा की मैंने आज एब्सेंट लगा देनी है. इसका मैंने नाम प्रोनाउंस किया और ये गायब हो गया. जी रजिया. अमीर हमजा एब्सेंट है. Ma'am, it express some order, commands, request, advice. Exactly. That's about the imperative sentences. So within imperative, ठीक है. So within imperative sentences, किरण आपका रोल नंबर कहाँ गया? सॉरी मैम, वो मेरा सेल फोन खराब है, भाई के सेल पे ले रही हूँ तो वो जब कनेक्ट करती हूँ वो. ठीक है लिख लो इसको. So on all these sentences we came to know that these are the imperative. They have the second clauses which are the imperatives. So we can also use, the point is that we can also use imperative sentences in zero conditional sentences. हम imperative sentences को भी zero conditional sentences में use कर सकते हैं. ठीक है. And you see in these example, like when you get home, call me. It is also having this present simple. If Maria calls,
don't answer the phone, it's also in the present simple. These example also comes in under the category of imperative sentences. ठीक है? Now, have you noticed मैंने यहाँ पे when use किया है in one sentence? No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन सा Yes, ma'am. कौन सा sentence है? When you get home, call me. When you get home, call me. अब देखो मैंने यहाँ पे if की जगह when यूज कर लिया, ये भी एक हमारे पास जीरो कंडीशनल आ गया। अब मैंने तो ये बताया था कि जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें if क्लॉज होती है, लेकिन ये when कहाँ से आ गया हमारे पास? So the question arises, the confusion arises. What is the difference between this if and when? So I'm gonna give you two sentences, ठीक है? And try to differentiate if there is any difference. If you put a stone in water, it sinks. S-I-N-K-S. If you put a stone in water, it sinks. जाहिर सी बात है पत्थर फेंकेंगे तो वो डूब ही जाएगा. If you put a stone in water, it sinks. If you put a stone in water, comma, it sinks. लिख लिया? जी मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब अगला सेंटेंस लिखो. When you put a stone in water, comma, it sinks. Mohammed Awais. When you put a stone in water, comma, it sinks. Can you identify the difference between these two sentences? Is there any difference? जी शाज़मीना. मैम फर्स्ट पार्ट में मुझे बता रहे हैं कि इफ़ यू पुट के अगर तुम फेंकोगे तो ऐसा होगा, और दूसरा बता रहे हैं कि जब हम फेंकते हैं तो फिर ऐसा होता है. फाइका. मैम जो when जब यूज करते हैं ना तो उसमें कंफर्म होता है कि काम होना ही होना है, और जब if यूज करते हैं उसमें कंडीशन होती है. लेकिन ये तो दो sentences हैं. If you put a stone in water, it sinks. When you put a stone in water, it sinks. Do you think that both the sentences are having different meanings? क्या meaning change हुआ इनमें when and if use करके? No, ma'am. No, ma'am. No. अब इस statement में देखो if भी use किया और when किया, there is no difference in meaning because the situation is always true. If you are using if and when, the situation is always true. पत्थर फेंकेंगे तो डूब जाएगा, if और when, ठीक है? But there is a difference. There is a difference. In all the situations, it's not true. It's not correct. हर situation में ये correct नहीं होता, ठीक है? अब जैसे हमने पिछली situation देखी, if you put a stone in water, it sinks. When you put a stone in water, it sinks. हम ये एक same meaning provide कर रहे हैं. But there is a difference. When आप use करते हैं, when you are sure about something, or when you are expecting something that this will happen, ठीक है? And you are sure. If आप use करते हैं जब maybe की situation होती है, maybe this will happen, ठीक है? तब आप if use करते हैं जब maybe की situation होती है. When आप use करते हैं when you are certain, I am certain that this will happen, like I am expecting this, तब आप use करते हैं, ठीक है? So when you get home, call me. This was a sentence. When you get home, call me. It's very simple. आपके घर गेस्ट आए हो, आपके घर गेस्ट आए हैं, 1 घंटा बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, फिर उन्होंने it's very true, it's very confirmed कि उन्होंने घर ही जाना है, ठीक है? When you get home, call me. In this situation, I'm using when. It means to say I am sure, I am confirmed, and I am expecting them कि वो हमारे घर से मतलब जब जाएंगे तो अपने घर ही जाएंगे, ठीक है? मतलब कहीं मार्केट भी रुक गए हैं, कहीं और भी चलेंगे हैं, तो एट द एंड तो अपने घर ही जाना है, ठीक है? So when you get home, call me. In this situation, I'm expecting that that person will reach home, ठीक है? But when I'm going to use if you reach home, if you get home, call me. If जो है यहाँ पे एक maybe सी situation डाल देती है, ठीक है? अगर तुम जाओ, ठीक है? But when you get home, जब तुम जाओगे, it means to say I'm expecting this and I'm sure about it. Is it clear? Between the difference between if and Yes, ma'am. Yes, ma'am. and Yes, one ma'am. more I really want to tell you that आप जब conditional sentences
Another very important point within these conditional sentences is that कि आप इन conditions को, ठीक है बाकी भी ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट रुको, कि हम इन कंडीशनल सेंटेंसेस को, अब जैसे मैंने ये बताया था कि आपके इन कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेस होती हैं, ठीक है, एक इफ क्लॉज होती है, कंडीशन होती है आपके पास, और उसका फिर रिजल्ट होता है जो सेकंड क्लॉज आप जिसमें लिखते हैं, ठीक है। आपके पास अब 2 क्लॉजेस हो गई, यू कैन स्विच बोथ द क्लॉजेस, आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप इनकी रिप्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास इफ क्लॉज पहले आ रही होती है और रिजल्ट क्लॉज पहले आ रही होती है, बट आप इनको स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू लीव आइसक्रीम इन द सन इट मेल्ट्स, ठीक है, योर आइसक्रीम गेट्स मेल्ट्स if you leave it in under the sun, like if the statement is if the wind blows the trees move, अब ये जो सिचुएशन है इसमें आपने if क्लॉज पहले यूज की है, ठीक है। अब जब आप if क्लॉज आपकी पहले आएगी, कंडीशन पहले आएगी और रिजल्ट बाद में आएगा, तो फिर आप दोनों क्लॉजेस के बिटवीन कॉमा लगाएंगे, ठीक है। if the wind blows the trees move, ठीक है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू स्विच देम, जब आप रिजल्ट क्लॉज पहले लिख रहे होंगे और कंडीशन क्लॉज बाद में लिख रहे होंगे, लाइक द ट्रीज मूव इफ द विंड ब्लोज, द ट्रीज मूव, अब यहाँ पे आपने रिजल्ट क्लॉज बाद में लिख दी और कंडीशन बाद में लिखी, ठीक है, रिजल्ट पहले लिखा और कंडीशन बाद में लिखी, द ट्रीज मूव इफ द विंड ब्लोज, देन आप कॉमा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपकी कंडीशनल पहले आएगी और रिजल्ट बाद में आएगा, इन दोनों क्लॉजेस के बिटवीन आप कॉमा ऐड करेंगे। बट जब आपका रिजल्ट पहले आप लिख रहे हैं, आप स्विच कर सकते हैं ना, आपका मीनिंग चेंज नहीं होता, इट्स ग्रामेटिकली ट्रू, इट्स ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो आप जब अपना यूज कर रहे हैं, आप जब अपना रिजल्ट क्लॉज पहले लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्लॉज पहले आ रहा है तो आप, और कंडीशन बाद में आ रही है तो आप कॉमा ऐड नहीं करेंगे। एंड जब आप कंडीशन पहले लिख रहे हैं एंड रिजल्ट बाद में लिख रहे हैं, तो इट मींस टू से आप कॉमा ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। जी मैम। Call me when you get home, ठीक है। So here we are not going to use comma. Call me when you get home, ठीक है। Don't answer the phone if Maria calls. आप कॉमा ऐड नहीं करेंगे, बट इफ मारिया कॉल्स, कॉमा डोंट आंसर द फोन। इन दिस वे आप अपनी सिचुएशंस को डिस्कस कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी रिगार्डिंग द जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस? यस मैम। यस मैम। ये जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है, ये आप सब कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स दिस ओके मैम। First conditional sentence, as well as we are also having second conditional sentence, third conditional sentence. So we are running out of the time, ठीक है। इसको फिर अभी हमारे पास, क्योंकि हमने इनको डिटेल में करना है, तो ये 2-3 मिनट की तो बात है नहीं। इसको फिर हम इंशाल्लाह कल एक अरेंज क्लास हम रख रहे हैं, ठीक है। कल एक अरेंज क्लास है आप लोगों की, और उसके अंदर हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे, इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को भी, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को भी देखेंगे। अरेंज क्लास मैम सैटरडे को आप कहते हैं। मैम कल हमारी पहले 3 क्लासेस हैं। यस मैम कल तो 3 है। अच्छा चलो देखते हैं, सैटरडे को ले लेंगे, ठीक है, सैटरडे को ले लेंगे। तो जब ठीक है, या मेरा दिल किया तो मैं कल को भी मैसेज कर सकती हूँ। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे, सेकंड को देखेंगे, थर्ड को देख लेंगे। इसके अलावा मिक्स अचार भी होता है हमारे पास, ये मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे हमने मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस का मिक्स अचार कैसे बनाना है, ठीक है। सो खुदा हाफिज़, सी यू ऑल ऑन फ्राइडे। आई होप अल्लाह हाफिज़ मैम। जो कुछ पढ़ा